Shri Ram Kumar Singh. Shri Ram Kumar Singh has worked extensively in the voluntary sector, training the rural youth in various rural technologies. He is a researcher, a field worker, and a trainer in the realms of appropriate technology. In 1990, he joined the Center of Science for Villages in Wardha under the guidance of noted Gandhian Dr. Devendra Kumar. Ram Kumar Singh developed a vision for rural development with appropriate technology so as to make the lives of village laborers, farmers, and artisans drudgery-free, economically independent, self-sustainable, and dignified. In 1999, Ram Kumar Singh joined the Suruchi Shikshan Vasahat Trust in Bardoli, Surat. Within a short period, his decision to involve local communities in the development and usage of technologies resulted in the rural industrialization of over 50 villages in and around Bardoli. Extensive work is carried out in 3 areas of technology: agricultural tools, renewable energy, and organic farming. Efforts are towards developing appropriate technologies, improving product efficiency and quality, making products commercially viable, and creating a strong network of the organization, farmers, and artisans within the community. Ram Kumar Singh has helped in the development of technologies in collaboration with institutes like IIT Chennai, NIT Nagpur, and IIM Ahmedabad. He has been involved in the development and redesigning of over 160 tools and accessories which are energy efficient, employ green practices, viable on a small scale, and are based on local resources. Ram Kumar Singh promoted solar cookers and smokeless chulhas among tribals and rural communities, training and employing rural youth to install over 6,500 cookers and 23,000 chulhas. He has promoted vermiculture technology among marginal farmers, making it an income generation activity for them. Ram Kumar Singh's efforts have touched the lives of around 500 villages, 15,000 farmers, and 400 artisans, treading a path and leading a lifestyle purely based on Gandhian principles. His work is unique in many ways, which has helped improve the living conditions of the artisans and farmers. Ram Kumar Singh has developed a successful model of decentralized and self-sustainable production in Gujarat. जमुनालाल बजाज फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राहुल बजाज जी, अवार्ड समिति के अध्यक्ष आदरणीय धर्माधिकारी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कैलाश सत्यार्थी जी, मित्रों, डायस पर उपस्थित मेरे सहयोगी साथी अवार्डीज, इस सभागृह में आज यह मंच साझा करते हुए मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इसके 2 कारण हैं। मेरे दोनों ही मेंटर श्री देवेंद्र भाई एवं श्री मोहन भाई परीख विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आज के वैश्वीकरण के इस दौर में, जहां गांधी जी की विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत तथा उसके लिए ग्रामीण एवं विकेंद्रित तकनीक का महत्व गौण होता प्रतीत होता है, स्वाभाविक है यह सम्मान गांधी विचार से प्रेरित संस्थाओं को प्रोत्साहन एवं आत्मविश्वास प्रदान करेगी। समाज के लिए काम करने की प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली, इसका एकदम सही उत्तर तो मुझे खुद को मालूम नहीं, पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की या करने में आनंद शुरू से महसूस होता था
और इसी को मैं अपने काम के लिए सहज प्रेरणा मानता हूँ। सन 1986 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे सामने दो विकल्प थे। पहला उद्योग की चमचमाती दुनिया थी, तो दूसरी ओर पीड़ित एवं पिछड़े व ग्रामीण समाज के लिए कुछ करने का आकर्षण। शुरुआत के 2 वर्ष बड़े असमंजस के रहे, परंतु सामाजिक क्षेत्र में पूरी तरह जुड़ने की यात्रा उड़ीसा के फुलवानी जिले से शुरू होकर ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र वर्धा में आके अच्छी शुरुआत ली। कुछ बातें बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही थी और कुछ प्रश्न मन में थे। समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि गांव में काम करने वाले कारीगर और किसान की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्थिति इतनी खराब क्यों है। और अगर स्वामी विवेकानंद जी की बातें मैं ध्यान में रखूं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तो फिर जो गांव में रहने वाले सोल्स हैं इनकी ये डिवाइन क्यों नहीं हो पाते, इनकी डिविनिटी में फर्क क्यों नहीं पड़ता है। तो ये भी समझ में आ रही थी कि देश के गांव के विकास के लिए टेक्नोलॉजी ही माध्यम हो सकता है, और दूसरी कि इस काम के लिए देश के प्रमुख विज्ञान एवं तकनीक की शोध संस्थाओं से संवाद स्थापित करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता की इस दुनिया में उनकी मदद के बगैर हम ग्रामीण तकनीक को कैसे टिका पाएंगे एवं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बातें कैसे आगे बढ़ पाएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे का काम शुरू किया। हमारा फोकस था 10.5 करोड़ वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे किसान आज महंगी होती खेती में टिक नहीं पा रहे और धीरे धीरे खेती छोड़ शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे किसानों के श्रम की बचत कैसे हो, खेती के खर्च कैसे घटें और उत्पादन कैसे बढ़े, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पिछले 15 वर्षों से सुरुचि में मैं काम कर रहा हूँ। तकनीक के माध्यम से परिवर्तन, ये हमारा नारा है और खेती के विकास में गांव के कारीगर माध्यम बने, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि इसी से गांव में खेती और ग्रामोद्योग दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकेगा। इसके लिए एक और तो हम NIT और IIT जैसी प्रमुख तकनीक संस्थाओं की मदद से छोटे किसानों के लिए समुचित खेत औजारों के विकास, स्थानीय स्तर पर उनके उत्पादन एवं मरम्मत के लिए व्यवस्था निर्माण आदि पहलुओं पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर NID जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण कारीगरों में डिजाइन की समझ कैसे बढ़े, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। गांव में तकनीक सुधार से जो छोटे उद्योग विकसित हुए हैं, उनके इम्पैक्ट असेसमेंट सरलता से कैसे हो, इस विषय पर IIM अहमदाबाद की मदद मिल रही है। अच्छे खेती औजारों का विकेंद्रित उत्पादन तथा गांव में किसानों तक इसे पहुंचाने के लिए नोडल बाजार और सेटेलाइट मॉडल में उत्पादन एवं बिक्री की व्यवस्था सुरुचि द्वारा खड़ी की गई है और इसका लाभ 100 से अधिक कारीगरों को कारीगर क्लस्टर के द्वारा तथा 6 जिलों के हजारों किसानों को 45 किसान मंडलियों, 11 स्वयंसेवी संस्थाओं तथा KVK जैसी सरकारी विभागों के द्वारा सीधे प्राप्त हो रही है। शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद हो, इसके लिए सुरुचि सजीव खेती, सजीव खाद, बीज स्वावलंबन, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह, सजीव खेती मंडल तथा अन्य संगठनों के माध्यम से काम कर रही है। आज तक की सफलता हमें उत्साह प्रदान करती है तथा हमें इस बात का आनंद है कि हम सुरुचि के स्वावलंबी स्वरूप को आज भी टिका पाने में सक्षम हैं। हमें यह भी मालूम है कि बदलती वैश्विक परिप्रेक्ष्य हमारे लिए कड़ी चुनौती पेश करेगी, परंतु जिस मुस्तैदी से हम और हमारे साथी
इस काम में लगे हैं, हमें विश्वास है कि हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन सब व्यक्तियों एवं संस्थाओं को समर्पित है जिन्होंने सुरुचि के कामों में मदद की है और जिनकी मदद के बिना हम अपने कामों में शायद सफल ना हो पाते। धन्यवाद।